Namaskar दोस्तों. Today we have with us CA Gurjot Singh, who is into practice since more than 5 years and is into the field of GST since its beginning. He is specializing in the field of GST and foreign trade policy, and today he will be discussing about export refunds under GST. We all know that in this tough situation of COVID-19, all the exporters are into great dilemma because of the liquidity crunch. So it becomes very important that we file our returns and all the export refund documents and its related for all the related export documents and return and its compliance to the highest level. So I will request Gurjot to please continue with his presentation on refunds. Over to you, Gurjot. Thank you, Aditya, for the wonderful introduction. Hello, friends. So today we are going to talk about export refunds under GST. So I'll start the presentation with my slides. So basically, under GST, there are two ways to export. One is export without payment of taxes, and the second one is export with payment of taxes. So we'll discuss the both of them into a bit detail now. Okay, so what is export without payment of taxes? So export without payment of taxes is that you've made a sale, you have made an outward supply, आपने export किया, and while filing your 3B return, जब आप basically tax pay करते हैं, उस time पे when you file GSTR 3B, तो आपको tax नहीं pay करना, आपको basically आपने LUT के under इसमें export किया है. Okay, so once you export under LUT, or it is also known as export without payment of taxes, the first thing you want is you should have an LUT which is being issued by the department through the online mode. तो LUT अप्लाई होता है GST कॉमन पोर्टल पे जाके, जो कि हमारी वेबसाइट है gst.gov.in. उस पे GST RFD 11 पे आपको क्लिक करके आपको दिस इज जस्ट अ वन पेज फॉर्म, आपको GST RFD 11 fill in करना है. You need 2 witnesses for that, and you can submit it. The moment you submit, and automatically a receipt and ARN is also generated. So it is considered equally to an LUT, and you do not need to visit any department for that. Acha. So once you have an LUT, you can start exporting the products to other countries out of India on the basis of LUT. अच्छा, एंड सेकेंडली जो आपको बात को ध्यान रखना है कि LUT हमेशा ईयर ऑन ईयर चलेगा, दैट इज फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर टू सेकंड फाइनेंशियल ईयर. जैसे ही आपका एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, इट नीड्स टू बी रिन्यूड एवरी फाइनेंशियल ईयर. ओके, तो जो चीजें अब हमें ध्यान रखनी है, जो कि व्हाट आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस आल्सो एंड व्हाइल टॉकिंग टू द अकाउंटेंट्स, टू द प्रोफेशनल्स, टू द क्लाइंट्स आल्सो, जो कि अल्टीमेटली गलती किसी की भी हो, सफर हमेशा क्लाइंट करता है. तो वो चीज को हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप LUT में आपने एक्सपोर्ट सेल किया है और जब आप 3B भर रहे हैं अपना मंथली, तो यू हैव टू फिल इन टेबल 3.1 आउटवर्ड सप्लाईज में कॉलम B, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई. काफी बार हम इसमें देखते हैं कि लोग नील रेटेड सप्लाई में इस चीज को फिल इन कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग. एक्सपोर्ट सेल इज नॉट नील रेटेड, इट इज जीरो रेटेड सप्लाई. अच्छा, तो अब पर्टिकुलरली आपने LUT में एक्सपोर्ट किया है, तो आपने टैक्सेबल वैल्यू की जो फील्ड में यू हैव टू पुट इन द सेल वैल्यू जो कि आपने एक्सपोर्ट किया है, और जहाँ पे टैक्सेस का कॉलम है, जहाँ पे IGST ऊपर मार्क होता है, वहां पे आपने कुछ भी फिल नहीं करना. यस, वहां पे आपने कुछ भी फिल नहीं करना, क्योंकि आपने ये एक्सपोर्ट सेल विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया है. एंड सेकेंडली, जब आप अपना GSTR 1 भरते हैं, दैट इज ईदर क्वार्टरली और ईदर मंथली, तो GSTR 1 में द सेम फिगर जो आपने GSTR 3B में भरा है, टेबल 3.1B में, सेम आपको टेबल 6A में भरना है GSTR 1 में. तो मेक श्योर द फिगर शुड बी सेम. फिगर्स चेंज होने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए. अच्छा, एंड प्लीज आप इस चीज को, जैसे कि आप LUT के अंदर आप लोग इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो प्लीज इंटीमेट द सेम टू योर CHA और योर कस्टम एजेंट ऑल्सो, जो कि आपका शिपिंग बिल फाइल करते हैं कस्टम अथॉरिटीज के साथ. प्लीज मेंशन देम कि यू हैव डिजायर्ड
to go into the export without payment of taxes, because उसका जो भी information है वो shipping bill पे reflect होता है. ओके, सो नाउ अब बेसिकली आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस बेसिकली एक्सपोर्ट किया है, टैक्स आपने पे नहीं किया. अब आपने जब भी अपना परचेजिंग किया है, जो भी आपने आईटीसी अवेल किया है एंड यू हैव क्लेम्ड इट थ्रू फाइलिंग 3B, whatever taxes you have claimed by way of ITC on input or input services, तो हाउ कैन यू क्लेम दैट नाउ, क्योंकि वो तो एक्चुअल आपका क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, इट इज बीइंग अनयूटिलाइज्ड. सो उस चीज के लिए अब रिफंड का बेसिकली सिनेरियो आता है. सो इसमें आपने एप्लीकेशन ऑफ रिफंड फाइल करना है बाय वे ऑफ RFD01. द टोटल प्रोसेस इज ऑनलाइन. सो रिफंड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट बेसिकली आपने करना होता है. 2 साल से ऊपर गवर्नमेंट आपको, डिपार्टमेंट्स आपको रिफंड नहीं देते. ओके, तो अब रिफंड कैसे फाइल किया जाए हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डिटेल में आपको टाइम ज़्यादा ना लेते हुए इसको थोड़ा सा शेयर करूँगा. ओके, सो अब इस सिनेरियो में जो स्टेप 1 है, सबसे पहले आपने जब एक्सपोर्ट किया, आपने अपना 3B और GSTR 1 फिल किया. जब आपने 3B और GSTR 1 अपना फाइल किया, उसके बाद अब आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है RFD01. तो आपने स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपने लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड लेके. जब आपने लॉगिन किया तो आपके टैब्स के ऊपर, वहाँ पे टैब्स में सर्विसेज का टैब है, सर्विसेज में यू हैव टू गो टू रिफंड्स में एप्लीकेशन फॉर रिफंड. जब आप एप्लीकेशन फॉर रिफंड में जाते हैं तो कई तरीके के रिफंड्स की ऑप्शन आपके सामने आ जाती है, क्योंकि जीएसटी में कई तरीके के रिफंड्स हैं, नॉट ओनली एक्सपोर्ट रिफंड्स. So you have to select the second one, refund on ITC of export of goods and services without payment of tax. जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस टैक्स पीरियड का रिफंड आपने अप्लाई करना है. तो यू कैन सिलेक्ट ईदर सिंगल टैक्स पीरियड ऑल्सो, या आप सिंगल महीना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल टैक्स पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड वंस यू डन विद इट, आप इसको प्लीज क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन करेंगे. जब आप क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन करेंगे, आपके सामने RFD01 खुल के आ जाएगा, आपके सामने एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा. प्लीज टेक केयर ऑफ दैट कि जो भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल होंगी वो क्रोनोलॉजिकल फाइल होंगी, और ऐसा नहीं है कि पहले आपने जुलाई का रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर दिया फिर आपने जून का किया. नहीं, अगर मैंने इस एग्जांपल में जुलाई टू सितंबर फाइल किया है एप्लीकेशन, तो जुलाई से पहले अप्रैल टू जून आपने नील एप्लीकेशन फाइल करना है अगर आपने उसमें एक्सपोर्ट नहीं किया है. अगर आपने उसमें एक्सपोर्ट किया है तो आपको डिजायर्ड एप्लीकेशन फाइल करके सार ही आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, जब आपने क्रोनोलॉजिकल सिलेक्ट कर लिया, आप इस एप्लीकेशन पे आते हैं. तो नाउ यू नीड टू फिल इन द डिटेल्स. ओके, नाउ द डिटेल्स आर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई. टर्नओवर ये वो टर्नओवर है जो आपने GSTR 3B में फिल करते हुए लिखी होगी. GSTR 1 और GSTR 3B में जो आपने फिल करते हुए लिखी होगी वो यहाँ पे आएगी, जिस मंथ के और जिस टैक्स पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इज एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. फॉर एग्जांपल, यू आर नॉट ओनली डीलिंग इनटू एक्सपोर्ट्स, आप डोमेस्टिक सप्लाई भी कर रहे हैं. तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इज टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई प्लस अदर सप्लाईज. टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड में खाली एक्सपोर्ट आएगा, एडजस्टेड टोटल में और भी आएंगे. इसका सिंपल रीजन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट आपको खाली रिफंड देती है एक्सपोर्ट सप्लाई का, ना कि डोमेस्टिक सप्लाई का. तो जैसे ही आप इसमें फिगर लिखेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट में थर्ड कॉलम में नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे वो आईटीसी आएगा जो आपने क्लेम किया है सोनली फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सपोर्ट सेल. जब आपने एक्सपोर्ट सेल करी है, इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज है या इनपुट्स है, खाली वही आएगा और किसी भी सप्लाई का आईटीसी इसमें नहीं आना चाहिए. ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहाँ पे कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के साथ आपको प्रोपोर्शनेट करके यहाँ पे रिफंड की कैलकुलेशन आ जाएगी. सेकेंडली, जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे एप्लीकेशन में, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक टोटल बंडल्ड एप्लीकेशन है. यहाँ पे IGST, CGST और स्टेट का इसमें बाइफिकेशन नहीं है. बाइफिकेशन नीचे जाके आएगा, यहाँ पे आपका बाइफिकेशन आ जाएगा जो कि आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा कि आपका IGST में कितना है और CGST और SGST में कितना है. अगर सेस है तो सेस में कितना है. द टोटल अमाउंट शुड मैच विद दिस अमाउंट. ओके, तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेकेंडली इसमें यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं. बैलेंस इन क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड. दैट इज, हमने जुलाई टू सितंबर अपने एग्जांपल में लिया, तो सितंबर के एंड में कितना बैलेंस था आईटीसी में, लेजर में, उसने ये दिखाया यहाँ पे. एंड बैलेंस इन क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन. में आज अप्रैल में रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, तो आज की क्या क्या तो इसका सिनेरियो है.
और अगर आपका मान लीजिए IGST में कोई भी बैलेंस नहीं पड़ा आज की डेट में, तो आपका रिफंड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि दिस मीन्स आपने यूटिलाइज कर चुके हैं। दिस इज नॉट अनयूटिलाइज, दिस इज योर यूटिलाइज। तो गवर्नमेंट यूटिलाइज का रिफंड आपको नहीं देती, क्योंकि आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हो उसको। सेकेंडली, जैसे अब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसी सेम एप्लीकेशन भी आपको हर चीज मिलेगी, इसमें स्टेटमेंट 3 होता है। हम जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे दैट इज स्टेटमेंट 3A। नीचे जाके होगा स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 बेसिकली क्या है, इट इज द डिटेल ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाई। इसके अंदर आपका इनवॉइस नंबर, आपका शिपिंग बिल डेट, शिपिंग बिल नंबर, पोर्ट कोड, आपका EGM नंबर, EGM डेट, सारी डिटेल्स आपसे एक CSV दैट इज CSV फॉर्मेट में पूछी जाएंगी, विच कैन बी डाउनलोडेड इन ऑफलाइन यूटिलिटी। जब आप इसको फिल इन करेंगे, आप उसको वैलिडेट करेंगे शीट को। वंस यू आर वैलिडेटेड और आपका एक जेसन क्रिएट होगा, जेसन विल बी अपलोडेड यहाँ पे, क्लिक हियर टू अपलोड। जैसे आप इसको अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अपलोड द डिटेल्स, ये पेज आएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अपलोड। जेसन आप यहाँ अपलोड करेंगे, वैलिडेट करेंगे स्टेटमेंट को। जैसे आप स्टेटमेंट को वैलिडेट करेंगे और प्रोसीड करेंगे, कुछ टाइम बाद अगर आपकी CSV में कोई भी एरर नहीं होते हैं तो ये प्रोसीड सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कहीं पे भी एरर्स हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। एंड वंस यू प्रोसीडेड, प्रोसीड होने के बाद आपको आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली यू नीड टू रेफर टू सर्कुलर नंबर 125 सर्कुलर 125 44 2019 डेटेड 18 नवंबर को ये सर्कुलर जनरेट हुआ था। इसके अंदर गवर्नमेंट ने सारी क्लैरिफिकेशंस दी हैं रिफंड को लेके, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हम उस पर आते हैं। सो नाउ दिस इज सर्कुलर। सर्कुलर में जैसे ये सर्कुलर है, सर्कुलर में एनेक्जर ए है। एनेक्जर ए में जैसे ही आप इसमें आएंगे, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज, इसमें कई तरीके के रिफंड्स के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप जैसे ही अब यहाँ पे अब इस रिफंड आप एनेक्जर ए में आते हैं, सीरियल नंबर 1 में, इसने यहाँ पे डिक्लेरेशंस भी दी हुई हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं जो कि आपने अटैच करने हैं। ये आपकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने मैंडेटरी हैं, एंड ऑल ऑफ दीज विल बी अटैच्ड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। आपने फिजिकली नहीं देना है ये। यहाँ पे आपने ब्राउज ऑप्शंस देखें, यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम 10 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अटैच्ड। 10 बार आप ब्राउज कर सकते हो। हर ब्राउजिंग सेक्शन का मैक्सिमम कैपेसिटी 5 MB। आप इससे ऊपर नहीं अपलोड कर सकते हो। मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक तरीके से इसको सारे इसके अंदर डालिए। एंड एक और अमेंडमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्कुलर नंबर 135 जो कि 15-20 डेज बैक इट हैज कम, जिसमें कि ये बताया गया है कि अगर आपका वाइल यूर फाइलिंग, अगर आपने यहाँ पे जो फिगर्स लिखी हैं नेट आईटीसी में जो आपने फिगर्स लिखी हैं, प्लीज मेक श्योर आपका 2A रिकनसाइल हो रहा है। अगर आपका 2A नहीं रिकनसाइल हो रहा और अगर आप यहाँ पे कोई फिगर्स लिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो GSTR 2A आपको रिकनसाइल करना बहुत जरूरी है। ओके, तो वंस यू हैव अपलोडेड द अटैचमेंट्स, उसके बाद यू नीड टू मेक द डिक्लेरेशंस। आपको टिक मार्क करना है, सिलेक्ट करना है LUT। जैसे आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो सबसे लेटेस्ट LUT आएगा, आपको उसको सिलेक्ट करके, तो देन बाय योर EVC और डिजिटल सिग्नेचर आप बेसिकली इसको अपलोड करके फाइल कर देंगे और आपका एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जिसमें आपका ARN लिखा होगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड। राइट, सो नाउ जब आपने बेसिकली अपना एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, सो अब उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइमलाइन क्या है, यूजुअल टाइमलाइंस क्या है गवर्नमेंट की प्रोसेस करने की। सो बेसिकली वंस द डिपार्टमेंट एक्नॉलेजेस, या तो डिपार्टमेंट आपकी रिसीट को इसको एक्नॉलेज कर देगा कि इसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा तो डिपार्टमेंट विल इशू डेफिशिएंसी मेमो इन RFD 03। अगर डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं होता और कोई भी इसमें डेफिशिएंसीज नहीं है तो प्रोविजनल रिफंड 90% ऑफ द रिफंड दिया जाएगा विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिफंड क्लेम। जैसे डिपार्टमेंट एक्नॉलेज करता है रिफंड को, विद इन 7 days 90% दिया जाएगा। उसके बाद प्रोविजनल ऑर्डर इशू हो गया इन द फॉर्म ऑफ RFD 04 along with payment advice in RFD 05। एंड आपका पैसा बेसिकली आपके अकाउंट में यूजुअली जो देखा गया है विद इन 15-20 days आ जाता है, और द बैलेंस रिफंड विल बी इशूड विद इन 60 days। मतलब कि जो 10% आपका बैलेंस है वो विद इन 60 days इशू होगा। अगर 60 days इशू नहीं होता है तो 6% इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। Now this is what the act says, but usually in the practical experience
इट टेक्स अ मच मोर टाइम, क्योंकि थैंक गॉड ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, सिंगल डिसबर्सल ऑफ द रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली, तो दिस हैज कम 3-4 months बैक। तो इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले अगर आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर सेंटर में पड़ता है या स्टेट में पड़ता है, तो मान लीजिए अगर स्टेट में पड़ता है तो फिर आईजीएसटी रिफंड अपना सेंटर अलॉट करता है, फिर स्टेट का अलग तरीके से होता है, एंड इट टेक्स अ टाइम, मतलब हर डिपार्टमेंट अपना टाइम लेके इसको अलॉट करता था। बट अब बहुत अच्छा इन्होंने किया है, इट्स इज अ सिंगल डिसबर्सल अथॉरिटी, जहां भी आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, इधर इट इज स्टेट और इधर इट इज सेंटर, सारा का सारा रिफंड इन अ सिंगल शॉट विल कम टू योर अकाउंट। ऐसा नहीं है टूट टूट के आएगा, ऐसा नहीं है आईजीएसटी पहले आएगा, सीजीएसटी बाद में आएगा, एसजीएसटी पहले आएगा, पहले ऐसा होता था, अब नहीं है। तो अब बेसिकली सारा का सारा रिफंड आपका विल कम फ्रॉम वन डिपार्टमेंट इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज द टाइमलाइन जो हमने डिस्कस किए हैं। तो यूजुअली मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में इट टेक्स मच मोर टाइम। गवर्नमेंट अभी कहती है कि यूजुअली इट इज हमें सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने, आपको कुछ नहीं आना, बट एज वी अंडरस्टैंड डिपार्टमेंट के पास भी प्रेशर है एंड एवरीथिंग इज देयर, सो यू हैव टू फॉलो इट अप। बिना फॉलोइंग के आपको आपका रिफंड लेना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, so now we'll come to some few amendments जो कि circular 135 से आई हैं। Yes, so now a very main important amendment has come, जब हम when we were filing refund application RFD 01 and we were in statement 3A we were filing and we were putting out the figures in turnover of zero rated supply, जहाँ मैंने आपको बोला था कि आपको एक्सपोर्ट की सेल्स की बेसिकली फिगर डालनी है। अब गवर्नमेंट ने इसके बाद क्या किया है, बिकॉज पीछे इंस्टेंसेस हुए हैं, कुछ फ्रॉड्स और कुछ कई तरीके की ऐसी ऐसी चीजें निकल के आई हैं, तो अब गवर्नमेंट इसके लिए कि turnover of zero rated supply means the value of zero rated supply of goods made during the relevant period without payment of taxes, or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or similar place supplier as declared by the supplier. Now अब वो ये कहते हैं कि अगर तो आपने एक्सपोर्ट जो आपने एक्सपोर्ट जिस रेट पे आपने एक्सपोर्ट किया है और सेम प्रोडक्ट आप या आपका कोई सिमिलर, आप जैसा कोई सिमिलर सप्लायर सेम प्रोडक्ट डोमेस्टिकली अगर बेच रहा है, तो उसकी कंपैरिजन की बात की गई है। सो नाउ विल लुक इट फॉर एन एग्जांपल। अब एग्जांपल है कि जीरो रेटेड सप्लाई में आपने 1 लाख रुपए का माल एक्सपोर्ट किया, जो आपने एक्सपोर्ट सेल करी वो 1 लाख की करी। अब सिमिलर डोमेस्टिक सप्लाई बाय सिमिलर सप्लायर 90,000 रुपए का माल यहाँ डोमेस्टिकली बिकता है, सिमिलर सप्लाई बेचता है उसको, 1.5 टाइम्स ऑफ द डोमेस्टिक इज 1,35,000। अब इस सिनेरियो में विच एवर इज लेस, सो यू हैव टू टेक 1 लाख। हम जब अपना RFD 01 फाइल करेंगे हमें 1 लाख लिखना है। सेकंड केस आ जाते हैं। सेकंड केस में 50,000 रुपए का माल बिक रहा है डोमेस्टिकली, आपने 1 लाख का बेचा एक्सपोर्ट, 50,000 का माल बिक रहा है 1.5 टाइम्स ऑफ 50,000 एंड 75,000। अब इस सिनेरियो में यू विल बी हर्ट, आपने एक्चुअल सप्लाई अपना किया 1 लाख का, बट गवर्नमेंट आपको 1 लाख पे रिफंड नहीं देगी, आपकी कैलकुलेशन 1 लाख पे नहीं होगी, आपकी कैलकुलेशन 75,000 पे होगी विद इफेक्ट फ्रॉम दिस अमेंडमेंट। सो इसका रीजन क्या रहा है, क्या नहीं रहा, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट व्हिच वी विल नॉट डिस्कस इन दिस वेबिनार, बट एनी हाउ, सो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन का देखना है, बट मेक श्योर एंड दिस इज क्लैरिफाइड कि ये जो कैलकुलेशन दिस इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, इसका और कोई पर्पस नहीं है, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ये गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाई है। ओके, नाउ अनदर अमेंडमेंट हैज कम। उसमें बेसिकली क्या होता था कि जब हम अपना एक्सपोर्ट, हमने माल अपना एक्सपोर्ट कर दिया एंड मेनी सिनेरियोज हैव बीन देयर जहाँ पे पैसा ही नहीं आता था, भाई बोगस एक्सपोर्ट कर दिए या किस तरीके से फ्रॉड कर दिया, पैसा नहीं आता था, बट एसएससी ने रिफंड भी ले लिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हैज बीन लूजिंग रेवेन्यू ओवर इट। तो अब इस सिनेरियो में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वेयर द, सो बेसिकली अगर आपका पेमेंट नहीं आती, अगर आप बेसिकली बीआरसी नहीं रियलाइज होती, अगर आपका पैसा आपके पास नहीं आता बाहर से, सो आपको जो आपने रिफंड लिया है वो आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। इसका मेन जिस्ट ये है इस अमेंडमेंट का। और जब आपको बेसिकली पैसा आएगा, जब आपके पास पैसा आएगा बाहर से, तब आप रीअप्लाई कर सकते हैं, तब आप बेसिकली विद द प्रॉपर प्रूफ आप अपने जुरिसडिक्शन ऑफिसर के पास जाके कि आपने पहले हमने आपका अपना रिफंड विद इंटरेस्ट पे किया था, सो प्लीज आप हमें
इतना इतना रिफंड वापस दीजिए क्योंकि हमारा पैसा वापस आ चुका है। तो इसमें लिखा है वेयर सेल प्रोसीड्स हैज बीन रियलाइज्ड बाय द एप्लीकेंट इन फुल और इन पार्ट आफ्टर द रिकवरी ऑफ रिफंड अमाउंट। ये हम वो बात करें जो रिफंड ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट को दे दिया। And the applicant produces evidence of such realization within 3 months of realization of sales proceed, the amount recovered shall be refunded by the proper officer, that is your jurisdiction officer, provided the sale proceeds have been realized. Okay. सेकेंड अमेंडमेंट ये थी। थर्ड एक मेजर अमेंडमेंट एक ये थी कि मान लीजिए आपने अपनी अपनी परचेजिंग करी जनवरी फरवरी मार्च 2020 में, आपने अपनी परचेजिंग करी, आपने सेल करी, आपने एक्सपोर्ट करा अप्रैल के महीने में। अब यूजुअली क्या होता था पहले कि जब आप अपना रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते थे, मैं रिफंड एप्लीकेशन फाइल करूंगा अप्रैल 2020 का क्योंकि मैंने सेल अप्रैल 2020 में करी है, तो जैसे मैं रिफंड एप्लीकेशन तो अप्रैल का रिफंड फाइल करूंगा, बट जब मैं आईटीसी उसमें डालूंगा, जो आईटीसी मैंने क्लेम किया है ओवर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई हैव सोल्ड इन अप्रैल, वो आईटीसी आपको नहीं लेने देगा क्योंकि पहले ये प्रोविजन नहीं था, जो कि पहले रिफंड एप्लीकेशंस भी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर चलती थी। आईटीसी जो एक फाइनेंशियल ईयर का था वो क्लब नहीं होता था। ये बहुत बड़ी राहत दी गई है, दिस इज अ मच रिलीफ टू द एक्सपोर्टर, जो कि प्रैक्टिकली भी हमने अपने क्लाइंट्स में बहुत सफर किया था पहले। बट अब इस सिनेरियो में क्या करना है कि जैसे आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे अपनी अप्रैल की, तो आपकी वो जो पुराना आईटीसी है जो आप पहले नहीं ले पा रहे थे वो भी क्लब हो जाएगा। तो दिस इज मच रिलीफ फॉर दैट। ओके, तो ये हमने टाइमलाइंस डिस्कस कर ली हैं इसके लिए। ठीक है, अब सेकेंडली हम बात करते हैं जो कि हम अपना सेकंड वे ऑफ एक्सपोर्ट है, दैट इज एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एंड दैट इज जिसे हम कभी कभी आईजीएसटी एक्सपोर्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली क्या है कि जब आप, इसमें आपको एलयूटी नहीं चाहिए। इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप तो जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो व्हेन यू विल बी फाइलिंग योर 3B, व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग योर आउटवर्ड सप्लाईज, तो आपका एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट किसी भी रेट का है, चाहे वो 5, 12, 18, 28 प्लस सेस वॉट एवर इट इज, आपको उतने रेट पे जितना आपने एक्सपोर्ट किया, आपको आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए 18% रेट है, तो 18,000 रुपये आपको टैक्स पे करना है जीएसटी 3B फाइल करते हुए। अगर आपके पास क्रेडिट लेजर में क्रेडिट बैलेंस है तो आप ऑब्वियसली आप उसे सेट ऑफ करके पे करेंगे, अगर नहीं है तो यू विल हैव टू पे बाय कैश। अब इस सिनेरियो में अब आप कहेंगे कि जी हमने तो पैसा दे दिया सरकार के पास, हमारे पास रिफंड कैसे आएगा? इसमें रिफंड बहुत इजी तरीके से आ सकता है। इसमें आपने कोई RFD 01 एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी। इसमें आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपने LUT में बेसिकली अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने LUT में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने अपने CH एजेंट को बताया था कि हमने LUT में करना है। अब आपने अगर IGST में करना है तो आपने ये वाली चीज भी अपने CH और शिप कस्टम एजेंट को बतानी है, so that all these things comes into shipping bill। shipping bill उसी अकॉर्डिंग बनता है बेसिकली। ओके, तो जब आपने IGST में पे करना है और आपने IGST के अंदर एक्सपोर्ट करना है, तो अब आपने 3B फाइल कर दी, आपने GST 1 किया, GST 1 में टेबल 6A में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने टेबल 6A में प्रॉपर डिक्लेरेशन शो करी और आपने रिटर्न फाइल कर दी। ओके, दिस इज नॉट दैट इजी, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जब आपने अपना एक्सपोर्ट विदाउट विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस किया, तो अब आपने क्या करना है कि 3B आपने फाइल कर दी। ओके, अब मेक श्योर जब आप टेबल 6A फिल कर रहे हैं, जब आप अपने टेबल 6 से फिल इन कर रहे हैं इसको, तो प्लीज मेक श्योर आपकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज कौन सी, इनवॉइस नंबर, आपका टैक्सेबल वैल्यू, आपका टैक्स अमाउंट, आपका शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट कोड, ये 6-7 चीजें जो भी टेबल 6A में आती हैं, मेक श्योर ये सारी चीजें आपके शिपिंग बिल से पैसे बाय पैसा मैच करनी बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे बाय पैसा, अगर कुछ पैसों का भी फर्क आ जाता है, सो वी हैव सीन प्रैक्टिकल केसेस, एक्सपोर्ट रिफंड रुक जाता है। इसका मेन रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों रुकता है। तो बेसिकली क्या है कि आपने एक एक चीज शुड मैच विद योर, एक एक फिगर एंड ईच पर्टिकुलर शुड मैच विद योर शिपिंग बिल। शिपिंग बिल को आप प्लीज इसको सामने रख के ही आप अपना टेबल 6 से फिल इन कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए अगर आपसे कहीं भी कोई डाउट है, सो प्लीज आप इसको आगे रखिए। ओके, सो वंस यू फिल इन द एप्लीकेशन, आप अपना टेबल 6 से आपने किया, आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। इफ एवरीथिंग इज स्मूथ, सब कुछ मैच है, आपका रिफंड जो हमने देखा है यूजुअली विद इन 15, 20, 25 डेज आ जाता है, बट ड्यू टू COVID-19 इट इज टेकिंग अ मच टाइम।
सो टू ट्रैक दीज रिफंड्स ऑल्सो आप अपना आइस गेट का लॉगिन बना सकते हैं, कस्टम पे जाके आइस गेट पर लॉगिन बना सकते हैं। आइस गेट पे लॉगिन बनाने के बाद वहां पे आपको सारी डिटेल जनरेट हो जाती है कि कहाँ तक आपका रिफंड का प्रोसेस है। उसमें स्क्रॉल जनरेशन होती है, स्क्रॉल जनरेट हुआ है नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है। अगर कहीं भी किसी तरीके का कोई एरर है वो पता चल जाता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे कुछ ऐसी चीज छूट गई है या कुछ ऐसी चीज आपने गलत लिख दी है, अगर मान लीजिए मेरा इनवॉइस है 001, आपने इनवॉइस नंबर लिख दिया 010 या 01, तो भी आपका रिफंड एप्लीकेशन, तो भी आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। तो आपने इसमें क्या करना है, आपसे अब गलती होगी तो जैसे ही आपका जो नेक्स्ट टैक्स पीरियड की जीएसटी 1 है, नेक्स्ट टैक्स पीरियड की जीएसटी 1 है, उसमें आपने टेबल 9A फिल करना है, दैट इज अमेंडमेंट्स टू एक्सपोर्ट सप्लाई। आपने इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करना है जो आपने पहले भरा होगा, वो ट्रैक होकर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। आपने जो फिगर्स चेंज करनी है वहां पे आप चेंज करके इसको रीसबमिट कर सकते हैं। ओके, सो वन मेन पॉइंट इज दिस। सेकंड मेन पॉइंट इज आपकी 3B की फिगर्स और आपकी 1 की फिगर शुड मैच। जो एक्सपोर्ट की फिगर्स हैं इट शुड मैच, पैसे बाय पैसा वो भी मैच होनी चाहिए और आपका शिपिंग बिल भी मैच होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपको जीएसटी 1 भरते टाइम जीएसटी 3B भी सामने रखना है और अपना शिपिंग बिल भी सामने रखना है। ओके, तो अब सेकेंडली जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसका मेनली सिनेरियो क्या था कि रिफंड क्यों नहीं आ पाता, अगर हम कुछ ना कुछ हमसे कुछ इनवॉइस नंबर में कुछ गलती हो जाए तो क्यों नहीं आ पाता। उसका बेसिक रीजन सा ये है कि दिस रिफंड इज ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग रिफंड, दिस इज ऑल बेसिकली ऑनलाइन प्रोसीजर। जैसे ही आप अपना जीएसटी पोर्टल पे इसको फिल इन करते हैं, आपका जो जीएसटी पोर्टल का जो लिंक है इट इज बीइंग अटैच्ड टू द कस्टम। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन विल मैच और आपने जो शिपिंग बिल फाइल किया दैट स्टेज विद कस्टम, तो आपका लिंक बिल्कुल मैच हो जाएगा, आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। अगर कहीं भी, बिकॉज इट इज ऑल ऑटोमेटिक प्रोसीजर, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम मैनुअल चीजें नहीं समझता। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है टू गेट अ स्मूथ टू गेट अ स्ट्रीमलाइन रिफंड प्रोसेसेस, सो दैट यू विल बी हैप्पी, योर क्लाइंट विल बी हैप्पी। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स जो मैंने आज आपको बताई हैं इन चीजों को लेके। सो आई होप ये वेबिनार आपको आपके लिए यूजफुल होगा। एंड थैंक यू आदित्य फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ ओवर टू यू आदित्य। Thank you so much, Gurjot. It was a valuable deliberation. आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके जो खुद एक एक्सपोर्टर हैं या फिर जो हमारे प्रोफेशनल्स जिनके एक्सपोर्टर क्लाइंट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रही होगी. We will come up with more such videos. Till then, I would request you all to please subscribe our channel. Uh, Till then, thank you so much. Keep liking and sharing our videos. Thank you.